اور اب آپ کو بتائیں کہ پانی کی قلت کے خلاف صحیح حسن پمپنگ سٹیشن پر شہریوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 1 ماہ سے علاقے میں پانی کی فراہمی مکمل طور پر بند ہے۔ متعدد بار احتجاج اور شکایات کے باوجود اقدامات نہیں کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سلمان سلیم سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں بالکل اس وقت ہم سخی حسن ہائیڈرنٹ کے قریب موجود ہیں اور آج یہاں پر علاقہ مکینوں کی جانب سے پانی اور بجلی کی عدم فراہمی کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ گرمی کے اس موسم میں نہ تو پانی دیا جا رہا ہے، نہ ہی بجلی گھروں کے اندر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، صحیح بتائیے گا احتجاج آپ لوگ کر رہے ہیں، ہائیڈرنٹ کے اوپر احتجاج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، ہمارا بنیادی مقصد ہے، ہمارا تقاضا ہے پانی۔ زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے پانی کی۔ اس اہلیان کراچی کو، اہلیان ڈسٹرکٹ سینٹرل کو پانی جیسی بنیادی نعمت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ وہی ہائیڈرنٹ ہے جس کے پاس جو لائنیں ہیں یہ میرے گھر کے نیچے سے آ رہی ہیں، ان کے گھر کے نیچے سے آ رہی ہیں، ان کے گھر کے نیچے سے آ رہی ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا اور ہائیڈرنٹ میں پریشر کے ساتھ پانی آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کراچی والوں کا پانی چرا کے بیچا جا رہا ہے۔ آج ہم نے یہاں پر احتجاج کیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے اپنا پی ایس تیموریہ کے ایس ایچ او ثاقب صاحب۔ ہمارا ہرگز مطلب نہیں ہے، ہم ذمہ دار شہری ہیں، ہم اپنے فرائض کو جانتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے لوگ پریشان ہوں، لیکن لوگ ویسے ہی پریشان ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم روڈ بند کریں۔ آج ہمارے احتجاج کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج کا لائے عمل یہ ہے کہ ایم ڈی واٹر بورڈ کے دفتر کے باہر احتجاج کریں گے اور ڈاکٹر عاصم کے گھر کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ دیکھیں بالکل جو شہری ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج انہوں نے مؤخر کیا ہے۔ 1 ہفتے کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے کہ ان کے گھروں کی لائنوں کے اندر پانی آئے گا، لیکن اگر پانی نہیں آتا تو انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے جو ہے وہ ایم ڈی واٹر بورڈ کے دفتر کے باہر بھی احتجاج کرنے کی ترتیب جو ہے وہ بنا لی ہے۔ تاہم احتجاج کے باعث یہ سڑک جو ہے وہ بند تھی اور اب سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں، میئر کراچی کا شہریوں کو ایک اور توسیع و رہائش کا کام مکمل ہونے کے بعد شہریوں کے لیے کھول دیا گیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی کی پہلی عوامی لائبریری اصل حالت میں بحال کر دی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ کے تاریخی ورثوں کی بحالی کے لیے میئر کراچی نے کمر کس لی۔ ایم اے جنرل روڈ پر موجود ڈینسو ہال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، 1886 میں قدیم عمارت تعمیر کی گئی تھی جسے کراچی کی پہلی عوامی لائبریری ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 2023 میں اس عمارت کو اصل حالت میں بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا جو آج پورا کر دیا ہے۔ اس میکس ڈینسو ہال کو تعمیر کیا گیا اور میں اس کی تاریخ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کراچی شہر کی پہلی عوامی لائبریری تھی۔ اس سے پہلے جو 1865 میں فریر ہال بنا تھا، وہ فریر ہال اس وقت کی اشرافیہ کے لیے تھا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر سے علائشیں اٹھانے کے لیے 100 کلیکشن پوائنٹس بنانے کا اعلان کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے عید پلان کو حتمی شکل دینے سے متعلق میٹنگ کر لی ہے۔ کل تمام ٹاؤن چیئرمینز کی تجاویز کا بھی جائزہ لوں گا۔ بقرعید کے حوالے سے کراچی میں علائشوں کا جو آپریشن ہے اس کے لیے سالڈ ویسٹ کے ساتھ مل کے، ٹاؤنز کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے سالڈ ویسٹ کی انٹرنل میٹنگ کر لی ہے۔ کراچی شہر میں 100 کلیکشن پوائنٹس ہم بنائیں گے، اپنی لینڈ فل سائٹس میں ٹرینچز کھودیں گے، 100 کلیکشن پوائنٹس۔ روڈ کٹنگ کی مخالفت کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ 25 سال بعد شارع نورجہاں تعمیر کی گئی تھی جس پر سوئی سدرن گیس کمپنی کو نئی لائنیں ڈالنے کی آڑ میں متعلقہ ٹاؤن چیئرمینز کی جانب سے روڈ کاٹنگ کی اجازت دے دی گئی۔ شہر میں کسی بھی مقام پر ڈبل یا ٹرپل پارکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کیمرامین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جام صادق پل پر شاہراہ بھٹو کی تعمیر کا کام جاری۔ پل کے دونوں ٹریک بند ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شہری متبادل راستہ اختیار کریں۔ اسامہ ملک کی رپورٹ دیکھیں۔ جام صادق پل ایک بار پھر ٹریفک کے لیے بند۔ ترقیاتی کام کے باعث دونوں ٹریک بند، شہری متبادل راستے اختیار کریں۔ سیکشن آفیسر آصف شہزاد کورنگی کے مطابق جام صادق پل پر پلر کا کام جاری۔ شام 7 بجے تک پل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ عوام جو آ رہی ہے اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا متبادل راستہ اختیار کریں۔ یہاں سے جو ہے کازوے کا راستہ اختیار کریں، سی این جی پمپ کا راستہ اختیار کریں اور ندی والا روڈ جو ہے اس طرف جائیں۔ پیٹرولنگ انچارج ارشد محمود بولے، کوئی حادثہ پیش نہ آئے اس لیے ٹریفک کو بند کیا ہے۔ عوام کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے، عوام تعاون کریں۔ متبادل راستے یہاں سے جو بھی ہمیں آ کے راستہ پوچھتا ہے تو ڈیفنس والوں کو ہم لوگ کراسنگ کا راستہ دے رہے ہیں،
ताकि कराची नदी की तरफ से जाए वो डिफेंस, और जिन्होंने सदर जाना है उनको हम ये नदी का रास्ता बलोच पुल, शारे फैसल और सदर की तरफ रवाना करें। भीनो चौरंगी से कोरंगी नदी जबकि गोदाम चौरंगी से आने वाले ट्रैफिक को क्रॉसिंग की जानिब भेजा जा रहा है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 70 में पानी का मसनूई बहरान। UC1 के चेयरमैन सैयद शहजाद मसर ने मसले के हल के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। सियासी जमातों के रहनुमा एक नकाते एजेंडे पर मुत्तफिक हो गए, खुद कार्रवाई का फैसला कर लिया। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जा। पानी की चोरी शहर का बड़ा मसला, यूसी इंतजामिया का खुद कार्रवाई का फैसला। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन सेक्टर 7D नॉर्थ कराची को पानी फराहम करने में नाकाम। यूसी चेयरमैन सैयद शहजाद मजहर ने अवाम के दबाव पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। 1 दर्जन रजाकार पानी चोरी और किल्लत आब के खात्मे के लिए काम करेंगे। तमाम पॉकेट्स के नुमाइंदों को सिलेक्ट कर लिया है, नॉमिनेट कर लिया है, उनका हम इजलास बुलाने जा रहे हैं परसों, और उसके बाद उनको जमा करने के बाद उनको ही निगरान बनाएंगे। वाटर सेवरेज का जो वॉलमैन है और सब इंजीनियर है उसको हम पाबंद कर देंगे कि वो उस नुमाइंदे को जो है वो तसल्ली कराएगा कि इसके यहाँ पानी क्यों नहीं चल रहा। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बरसों से किल्लत आब का सामना कर रहे हैं, महंगे दामों पानी के टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। टम्परिंग और गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए कमर्शियल इलाकों को मुंतकिल कर दिया जाता है। इस मसले के हल के लिए इन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों से बंदे लिए जो कि जिम्मेदारी उनके सौंपी गई है ताकि वो चोरी, पानी की चोरी और नाजायज़ कनेक्शन को रोकने के लिए उन पर जिम्मेदारी डाली गई है। इस कदर है कि हम तंग आ चुके हैं। यकीन करेंगे जो टैंकर माफिया है ना, हम प्राइवेट टैंकर डलवा के बहुत आजिज़ आ गए, और बच्चों का साथ होता घर में एक महदूद आमदनी है, और 3-3 साढ़े 3 हज़ार का पानी अगर हम डालते हैं तो 5वें-6ठे दिन वो पानी ख़त्म होता है। आधी गलियों में पानी पहुँच रहा होता है, इनसे पूछो भाई 71 की सप्लाई हो, बोलते जी हमारी सप्लाई चल रही है, पानी नहीं पहुँचेगा। लेकिन क्यों भाई, इन्होंने दूसरी जगहों पे पानी खोला हुआ होता है, वॉल खोले हुए, तो दूसरी जगह के हमारी तरफ का वॉल नहीं खुलता कभी भी। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के हिमायत याफ्ता रजाकार पानी चोरी करने वाले अनासिर की निशानदही यूसी चेयरमैन को करेंगे, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, लेकिन यहाँ के शहरी पीने के पानी के लिए हर रोज़ जंग लड़ते हैं। लाइन्स एरिया निज़ामी रोड पर जहाँ लोग 30 साल से सिर्फ पानी की एक बूंद को तरस रहे हैं, मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से मसला फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। वक्त बदल गया, हुकूमतें बदल गईं, मगर नहीं बदली तो सिर्फ लाइन एरिया की किस्मत। यहाँ के मकीन अब भी पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाते हैं, टैंकर मंगवाते हैं और शिकायतें करते करते थक चुके हैं। इलाका मकीन बिलखुसूस खवातीन का कहना है कि इन्हें पानी लाने के लिए रोज कई किलोमीटर चलना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई रह जाती है, घरेलू काम रह जाते हैं। सिर्फ पानी के लिए वाटर बोर्ड को बार बार शिकायत दी, फाइलें जमा कराई, लेकिन आज तक ना कोई आया, ना किसी ने सुना, और अगर पानी आ भी जाए तो सीवरेज के पानी की आमेदिश की वजह से इस्तेमाल के लायक नहीं होता। ये अभी अब लाइने में से पानी जो आ रहा है, इतना गंदा और बदबू वाला पानी आ रहा है बेटा, बहुत परेशानी। और कल से सुबह से लाइट नहीं है, इतनी परेशानी हो रही है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली। हम लोग पानी की किल्लत इस तरह गुजारा कर रहे हैं। 1 गैलन लिया है, 1 गैलन पी लिया, 1 गैलन हम मिनरल वाटर का लिया है। छोटे छोटे बच्चे, गर्मियों का साथ है, बच्चे भी खेल कूदने की उम्र में बोतलें उठाए पानी की तलाश में नजर आए। बशारा पार्क की तरफ से हम ट्राली लेके जाते हैं, 5-6 गैलन लाते हैं, यूं ही खत्म हो जाता है और बिजली भी नहीं है। साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है, मगर यहाँ लाइन्स एरिया में ये हक सिर्फ एक ख्वाब बन चुका है। क्या हुकाम जागेंगे या ये प्यास नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहेगी? कैमरामैन कमर आब्दी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रोशनियों के शहर कराची के बड़े मसाइल, गैस बहरान और एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है। ओल्ड सिटी एरिया कुरंगी, औरंगी टाउन, मलीर, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बिजली से मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि ना कोई परसान हाल है, ना ही कोई सुनवाई होती है। लकड़ियाँ और LPG पर खाना तैयार करने से अखराजात बढ़ गए हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के 30% बिजली चोरी ज़दा इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। शहर के 70% इलाकों में बिजली की फराहमी जारी है। कायदाबाद, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया समेत बेशतर इलाकों में एलानिया बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गैस बंदिश से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर है। LPG की कीमत में मजीद 10 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई, जिसके बाद नई कीमत 250 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। जी हां, आपको अपडेट करें,
गैस बंदी से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर, एलपीजी की कीमत में मज़ीद 10 रुपये फी किलो कमी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। गैस बंदिश से परेशान शहरियों के लिए बड़ा एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए कम, कीमत 260 से कम होकर 250 पर। गैस की मुसलसल बंदिश से घरेलू सार्फिन शदीद मुतासिर। शहरियों का कहना है कि खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना, जिसके बाइस मुताबाद ईंधन के ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी को मजीद सस्ता किया ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। उनका कहना है कि गैस की बिलातातुल फरहमी यकीनी बनाई और मौजूदा बहरान का कोई मुस्तकिल हल निकाला। गैस तो बहुत दिन हो गया, यकीनियात है, घरों में परेशानी है, और एलपीजी भी सस्ते है, मगर ताकि और सस्ता हो जाए तो गरीब लोगों के लिए बेहतर होगा जी। चाय बन रही है, बिल्कुल गैस आ ही नहीं रही है, हम क्या करें बताओ। अब बाज़ार से चाय लेते हैं, हमारे को वारे में नहीं आती है। कहने का मतलब है हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 1000 रुपये कमाने वाला तो आदमी तो मर गया ना। आवाम का कहना है कि एलपीजी बढ़ते इन्हिसार को कम करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत, जबकि हुकूमत से अपील की गई है कि गैस बहरान पर काबू पाने के लिए तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली तरतीब दी जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कैद के मसरूफ़ तरीन तजारती इलाकों में शामिल रनछोड़ लाइन मार्केट में चिंगचे रिक्शों की बेहंगम आमदोरफ्त ने ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। ख़रीदारी के लिए आने वाले ख़रीदारों और मकामी रिहायशियों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि गाहक ट्रैफिक जाम की वजह से मार्केट का रुख करने से कतरा रहे हैं। तफसीलात काबिश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। रनछोड़ लाइन मार्केट में चिंची रक्षों की भरमार, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया, शहरी परेशान। मार्केट एसोसिएशन ने रक्षों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर शाहिद सोजलानी ने इस सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि चिंची रक्षे जगह जगह खड़े हो जाते हैं, जिससे मार्केट में दाखिल होना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक का बहाव बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। शाहिद सोजलानी ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रनछोड़ लाइन मार्केट को गैर जरूरी रक्षों से साफ किया जाए और सिर्फ मखसूस पॉइंट्स पर रक्षों को खड़ा होने की इजाजत दी जाए। आज तो रश कम है क्योंकि इतवार का दिन है, यहाँ इतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन अगर आप आम दिनों के अंदर यहाँ पर आएँ तो यहाँ से निकलना मुश्किल है। यहाँ पर आपको एम्बुलेंस फंसी मिलेगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फंसी हुई मिलेगी और आप यकीन करें यहाँ से निकलना मुश्किल है। आप यहाँ पर देखें जो भी टर्निंग पे है और वहाँ पर आप देखें कि रिक्शों की भरमार है। यहाँ तो इनको मुतबादिल रास्ता दिया जाए कि आगे स्टैंड बन जाए कि वहाँ से पब्लिक उतरे और वहाँ से चढ़े। ये जहाँ दिल चाहता है वहाँ रोक देते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आती है वो उसको मार देती है। इलाका मकीनों और दुकानदारों ने भी इंतजामिया से फौरी कार्रवाई की अपील की है ताकि ट्रैफिक का इंतजाम बेहतर बनाया जा सके और मार्केट में आने वालों को सहूलत मिल सके। भाईजान बहुत तकलीफ का सामना है, बहुत तकलीफ का सामना है। मैं तो इधर का रिहायशी हूँ, मगर बहुत तकलीफ का सामना है, क्योंकि ना पब्लिक निकल सकती है और आवड़ा उड़ी बहुत है इन रक्षे वालों की वजह से। तो हम तो चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का फैसला वो हमारा फैसला है। रनछोड़ लाइन मार्केट के हालात फौरी तवज्जो के मुंतज़िर हैं ताकि शहरियों को सहूलत मिले और बाजार की रौनक बहाल हो। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई। कुरंगी के इस्माइल गोड की मंडी में जहां खरीदारों का जोश दीदनी है, वहीं व्यापारियों की उम्मीदें आसमान को छू रही हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। कुर्बानी सिर्फ फराइज नहीं जज्बा है और यही जज्बा ले आया है लोगों को कोरंगी इस्माइल गोड की मंडी, जहां साईवाल नस्ल की बछिया 15 लाख में खरीद ली गई। खरीदार का कहना है कि बछिया दिल को लगी तो ले ली, जो जानवर दिल से पसंद आ जाए इसे खरीद लेने में ही सुकून है। गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल मवेशियों की कीमतें कुछ ज्यादा हैं, लेकिन जज्बा कुर्बानी कम नहीं हुआ। पहले लेते थे बैल भारी भारी, एक दफा 2 बछियाँ ली थी, अब किसी एक बछिया ली, अभी एक और लेनी है इतनी भारी। ये 15 लाख की ली है मैंने, समझे। साईवाल का माल है, ये घर का पला हुआ माल है, बहुत सीधा माल है ये, और अल्लाह मियाँ बस इसको कबूल करे। पसंद की बात है ना, तो ये इससे अच्छी हमें कुछ भी नहीं लगा। खरीदार जानवर खरीद कर खुश हैं तो व्यापारी भी जानवर बेच कर मुतमईन हैं। कहते हैं अभी तक 20 जानवर बेच चुके हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बहुत अच्छा चलेगा। अल्लाह पाक सबको रोज़ी दे, सब मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, सांस वाली चीज़ है। अल्लाह पाक सबको रोज़ी दे, सबके सदके उम्मीद है। भाई माशाल्लाह हम 5 जन हो गए, यहाँ पर तकरीबन 150 माल है।
20 बिक चुके हैं माशाल्लाह, 130 माल खड़े हैं। दिल से लाए, दिल से चुना और दिल से कुर्बानी दी, यही है ईद कुर्बान का असल जज्बा। कोरंगी की मंडियों में ये जज्बा हर चेहरे से झलक रहा है और व्यापारी भी पुरुमीद हैं कि ईद से पहले हर जानवर अपनी कुर्बानी वाले घर को रवाना हो जाएगा। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मोहम्मदन स्पोर्ट्स और क्वार्टर स्पोर्ट्स के दरमियान खेला गया। मोहम्मदन स्पोर्ट्स ने क्वार्टर स्पोर्ट्स को 2-0 से शिकस्त दे दी है। मुमताज शिगरी से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, आल कराची मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल जो है खेला गया। यहाँ पे 2 टीमों के जो है ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला है और यहाँ पे मोहम्मदन स्पोर्ट्स ने जो है क्वाड स्पोर्ट्स को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर जो है ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस वक्त जो विनर कैप्टन है वो मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट था, हम लोगों ने मेहनत की, बस अल्लाह पाक का नाम लिया, अल्लाह पाक ने हम लोग को इज्जत दिया, जज्बा से हम लोगों ने खेला। आज बिल्कुल देखें, जज्बात से खेला और उन्होंने जो है ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और MPA और अली अहमद जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मोहतरम, बताएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देख रहा हूँ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब को देख रहा हूँ, जहाँ भी जाते हैं वो ग्राउंड्स के इफ्तिताह करते हैं, सहूलियात फराहम करते हैं। यहाँ पर जिस तरह क्राउड है आपने देखा, लोग जो है पुरजोश है फुटबॉल देखने के लिए, लेकिन यहाँ का जो ग्राउंड है इसको देख के नहीं लगता कि यहाँ पर जो है कोई फुटबॉल खेलने के काबिल है। क्या कहेंगे, क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ जितने भी बनारस इस इलाके के लोग हैं सब स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन हैं और आपने देखा किया 146 टीमों ने हिस्सा लिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुई और बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदन स्पोर्ट्स जो यहाँ से कामयाबी में उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उसके साथ जो क्वाड स्पोर्ट थी उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, हार जीत का हिस्सा है। और आपने देखा कि कराची में जितने भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, ग्राउंड है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। इस ग्राउंड का भी बहुत ख़राब हाल था, मगर हमारे यहाँ टाउन के चेयरमैन मरलो मिर बहार के अली अकबर ने इसको बनाया है और मज़ीद इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे और इसको आवाम के लिए, स्पोर्ट्समैनों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेंगे। आज बिल्कुल देखें, एक शायकीन की कसीर तादाद जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद हो और जिस तरह जो ये मैच यहाँ पे खेला गया, भरपूर तरीके से जो लोग हैं वो फुटबॉल से जो मोहब्बत करने वाले थे वो यहाँ पे मौजूद थे और मोहम्मदन स्पोर्ट्स ने जो है इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। जी।